Are you ready now? अब आप तैयार है अभी? Turn with me in your Bibles to the book of Mark chapter 3 verse 24. मरकुस का 3 अध्याय उसका 24वां वचन। If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. देखिए वचन में लिखा है, यदि किसी राज्य में फूट पड़ी हो तो वो राज्य स्थिर नहीं रह सकता। If a kingdom is divided, अगर कोई राज्य उसमें फूट पड़ा हुआ है, Jesus is speaking to the Pharisees, he's speaking to his disciples. देखो यीशु यहाँ पर चेलों से बोल रहे हैं, फरीसियों से बोल रहे हैं, And he was telling them that there is a need for unity in the kingdom of God. और वहां पर यीशु उनसे कह रहे हैं कि देखिए परमेश्वर के राज्य में एकता की जरूरत है। First he talks about the kingdom. सबसे पहले देखिए राज्य के बारे में बोलते हैं, Then he moves on to verse 25. फिर उसके बाद 25वें वचन में जाते हैं And he says, और वो कहते हैं, if a house is divided अगर कोई घर बटा हुआ है against itself, खुद में, that house has no future, that house will not stand, it will collapse. तो उस घर का कोई भविष्य नहीं होगा, वो टिका नहीं रह सकता, वो गिर जाएगा। I want to talk to you today आज आपसे बोलना चाहते हैं about the principle of unity. एकता के सिद्धांत को, The principle of unity is so important और एकता का सिद्धांत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है for stability. सब इसके लिए टिकाऊपन। Everyone look at your neighbor and say stability. Yes, what is stability? और ये टिकाऊपन क्या है? Tikaupan. It's important for growth if you have to grow. देखिए अगर आपको बढ़ना है, And it's important for the fulfillment of purpose. और देखिए ये महत्वपूर्ण है उद्देश्य और मकसदों को पूरा करने के So लिए। today listen carefully. तो आप बड़े ध्यान से सुने, God will touch you and everything that belongs to you. परमेश्वर आपको छू लेगा और हर एक चीज जो आपकी उसे भी छुएगा। Listen carefully. सुनिए ध्यान The से। first one, write it down. पहला मुद्दा लिख लीजिए, The principle of unity. एकता का सिद्धांत। The principle of unity. एकता का सिद्धांत, Unity is a powerful force. और एकता जो है एक शक्तिशाली बल है। If you read the book of Genesis, अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में, the people over there, they were of one mind. They were of one language. और देखिए वहां के लोग आप पाएंगे उनके पास एक ही मन था और एक ही भाषा थी, And they decided to do something foolish. और उन्होंने कुछ बेतुका काम करने का फैसला लिया। They said, let us build a tower उन्होंने कहा चलो हम एक लंबी इमारत बनाएंगे and let us reach God. और चलो हम परमेश्वर तक पहुंचेंगे। Of course, it was a foolish adventure. और सचमुच ये एक बेवकूफी का योजना था, And God came over there और परमेश्वर वहां आया and He said something which I want you to understand. और परमेश्वर ने कुछ ऐसा कहा जो हम चाहते हैं कि आप समझें। He said, these people are of one mind. और परमेश्वर ने कहा ये लोग जो है एक मन के हैं, They are of one language. इनके पास एक ही भाषा है, And what they have set out to do, और जो इन्होंने करने का फैसला लिया है no one can stop them. कोई इन्हें रोक नहीं सकेगा। Hallelujah. हालेलुया। Very first book of the Bible और बाइबल का सबसे पहला पुस्तक speaks about what unity can do. बताती है कि एकता क्या कर सकती है। Hallelujah. हालेलुया। And God said, I need to stop this और फिर nonsense. परमेश्वर ने कहा कि मुझे इस बेवकूफी के काम को रोकने की जरूरत है। People of God. परमेश्वर के लोगों, You see, today the people of the world, आज दुनिया के लोग they are united. वे एक हो गए हैं, But when the people of God are very disunited. लेकिन परमेश्वर के लोग जो हैं एकदम पूरी तरह से बटे हुए हैं। I want you to listen carefully. और चाहते हैं कि आप ध्यान से सुने। You see, when they wanted to crucify Jesus, आप देखते हैं जब वे यीशु को क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे, listen, sir, सुनिए जनाब, Herod and Pilate, they were enemies. They became friends. हेरोदेस और पिलातुस जो पहले दुश्मन हुआ करते थे, दोनों दोस्त बन गए। Why? क्यों? Because they wanted to crucify Jesus. क्योंकि वे यीशु को क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे। Today, the people of the world, आज दुनिया के लोग they are more united वे ज्यादा एक हुए हैं than God's people. परमेश्वर के लोगों की तुलना में। Sad, दुख but true. दुख की बात है, लेकिन सच तो यही है। Today, lift your hands. आज अपने हाथ उठाएं, Lift your right hand and say, Holy Spirit, अपने दाएं हाथ को उठाएं, कहे पवित्र आत्मा open my मेरी eyes, आंखें खोल दे, open my मेरे ears कानों को खोल दे, to understand this word. इस वचन को समझने के लिए। Let your grace of unity come in my home, in my family. और तेरे एकता का अनुग्रह जो मेरे घर मेरे परिवार में आ जाए, In the name of Jesus. यीशु के Now नाम। lift both your hands and begin to pray. चलिए आप दोनों हाथ उठा के प्रार्थना The करेंगे। Lord will remove every confusion in your family today. प्रभु आपके परिवार में से हर एक प्रकार की गड़बड़ी और उलझन को The निकाल Lord देगा। will remove every confusion in your life today. प्रभु आपके जिंदगी में से हर एक उलझन को निकाल देगा। God will bring the anointing of unity. परमेश्वर एकता का अभिषेक लेकर आएगा। Raise your hands and pray right now. जी हाँ, चलिए अपने हाथ ऊपर उठा के प्रार्थना Yes, there करेंगे। may be no unity between husband and wife, हो सकता है पति और पत्नी के बीच में कोई एकता नहीं between हो, children and parents. बच्चों और माता पिता के बीच It's में। coming to you ये now. आपके पास आ रहा है अभी, Receive it. ले लीजिए। Hallelujah. Hallelujah. Lift your hands and praise God right now. चलिए अपने हाथ ऊपर उठा के प्रभु की स्तुति करेंगे। If इस you're वक्त not praying, you are a suspect. अगर
आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो आप शक के घेरे में हैं। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Lord, those who are praying, touch their homes today. और प्रभु जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं आज उनके घर को छू ले। In the name of Jesus. यीशु के नाम And में। God's people said, और परमेश्वर के लोगों ने कहा Amen. आमेन Amen. Amen. Put your hands down. चलिए हाथ नीचे I want करेंगे। you to go to Psalm 133. और चाहते हैं कि भजन संहिता का अध्याय 133 The निकालेंगे। first one, पहला है the principle of unity. वो है एकता का सिद्धांत। Psalm 133 and verse 1. और भजन संहिता का अध्याय 133 उसका पहला Look what वचन। God says now. और देखिए वहां पे परमेश्वर क्या He कहता है। says, Behold, परमेश्वर कहता है देखो how good and how pleasant it is when brethren, when God's people, they dwell together in unity. देखिए भजन संहिता अध्याय 133 का पहला वचन। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग बहन लोग आपस में एकता में मिले रहें। Look at this. देखिए यहाँ And verse 2 describes what blessings come from unity. और देखिए दूसरा वचन बताता है कि एकता के साथ कौन सी आशीष आती है। When individuals come together with one purpose, जब एक एक व्यक्ति जब एक उद्देश्य के साथ इकट्ठा होते हैं great things can happen. महान चीजें हो सकती हैं। Hallelujah. हालेलुया। Your family must be very poor today, no problem. और शायद हो सकता है आपका परिवार आज बहुत ही गरीब हो, कोई बात नहीं। You may be in lot of difficulties, आप बहुत सारी मुश्किलातों में हो, but this blessing must come लेकिन ये आशीष आनी चाहिए upon your life. आपकी जिंदगी पर। You may be an ordinary person. शायद हो सकता है कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं। Let me tell you, मुझे बताने after today's meeting, आज की सभा के बाद something unique will happen through you. कुछ तो खास होगा आपके जरिए। Hallelujah. Hallelujah. This is the blessing of unity. ये है एकता की आशीष। Read verse 2 carefully right now. Open बड़े your Bibles. ध्यान से इस वक्त दूसरा वचन पढ़ें, बाइबल See खोलें। what it says. देखिए वचन क्या कहता It है। is like the precious oil. और ये तो एक उत्तम तेल के समान है। The oil speaks about the anointing of the Holy Spirit तेल जो है पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में बताता है। upon the head. सिर पर, Upon the head meanings it begins with the topmost person in your family. और सिर पर का होने का मतलब है आपके परिवार में का सबसे मुख्य व्यक्ति जो है Running मुखिया, down उससे the शुरू होता है। beard of Aaron फिर उसके बाद हारून के दाढ़ी पर बहते हुए, speaks about the face. और ये चेहरे के बारे में बताता है। Running down the edge of his garments. उसके बाद उसके वस्त्र की छोर तक पहुंचता है। You see, when this unity anointing comes in your home, in a ministry, in a business, from top to bottom, everything will be impacted. और देखिए जब ये एकता का आशीष आपके घर में आता है, व्यवसाय में आता है या सेवकाई में आता है, तो ऊपर से नीचे तक हर किसी पर इसका असर पड़ता है। I want you to listen carefully. और मैं चाहता ध्यान से सुने। Many times, बहुत बार a team is very talented, और टीम तो बहुत ही प्रतिभाशाली है, a team is very capable. और टीम तो बड़े सक्षम है, But what happens? लेकिन क्या होता A है? team often, you can see it in cricket, you can see it in football, you can see it in any game. आप देख सकते हैं क्रिकेट में, आप देख सकते हैं फुटबॉल में, किसी भी खेल में देख सकते हैं, You can see it in a corporate setting. और आप कॉर्पोरेट की सेटिंग में भी देख सकते हैं। Everybody is so talented. हर कोई बहुत ही प्रतिभाशाली है, Everybody is so capable, हर कोई- so qualified. और हर किसी में बड़ी काबिलियत है, बहुत ही वे योग्य है, But because there is no interaction, लेकिन क्यों कोई तालमेल नहीं, that team fails. इस वजह से वो टीम नाकाम हो जाती है। Today I want you to open your eyes. आज मैं चाहता हूं अपनी आंखें खोलें, And top people fall down. और बड़े बड़े उच्च श्रेणी के लोग गिरते हैं, This is what is happening to many of you. और यही तो होता है आप में से बहुतों के साथ। That is why you are not able to move forward. इसी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाते You हैं। are saying, I've got the money, I've got the education, I've got the swag, but nothing is happening in your आप life. ऐसा कहते हैं कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास अच्छी पढ़ाई है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है। Look what it says. देखिए वचन क्या It is कहता the oil. है? ये तेल है, It is the precious oil, not just any oil. ये कोई मामूली सा तेल नहीं, ये बहुत ही उत्तम तेल है। Lift your hands today and say, Holy Spirit, अपने हाथों पर उठाए और कहे पवित्र let आत्मा, the oil of understanding come upon my family members. समझ का तेल जो है मेरे परिवार के लोगों पर आ जाए। Oh, let the oil of understanding come upon me, oh ओ God. समझ का तेल मुझ पर आ जाए In प्रभु, the name of यीशु Jesus. के नाम में। Begin to open your mouth and begin to pray. चलिए अपना मुंह खोले और प्रार्थना करना शुरू करें। In the name of Jesus. यीशु के नाम When में। that oil of understanding comes upon you, जब वो समझदारी का तेल आपके ऊपर आता you है, will speak आप बोलेंगे and your children will listen. और आपके बच्चे सुनने लगेंगे। You will speak आप बोलेंगे and your family members will say, yes, this is what I want to और do. आपके परिवार के लोग कहेंगे हाँ यही तो हम चाहते करें। Cry out with lifted अपने hands. हाथों को ऊपर उठा के पुकारिए, Oil of understanding come upon me. और समझदारी का तेल मुझ पर आ जाए। You are a boss. अब मान लीजिए कोई Don't बॉस- worry, you're a leader, you're a manager, you're an executive. Lift your hand and pray. Oil of understanding come upon me in the name of अगर आप Jesus. कोई बॉस है, कोई लीडर है, कोई मैनेजर है या फिर एग्जीक्यूटिव है, फिक्र न करें, अपने हाथ ऊपर उठाएं और कहें कि समझदारी का तेल मुझ पर आ जाए। Hallelujah. हालेलुया। Somebody say hallelujah. चलिए कोई तो कहे हालेलुया। I was talking to a businessman पासवान जी किसी व्यावसायिक व्यक्ति से बात कर रहे थे over dinner.
और रात के खाने पर He's a big businessman. और एक बड़े उच्च श्रेणी के And व्यवसाय। I said, how do you recruit people? What kind of people do you recruit? इन्होंने उससे पूछा कि कैसे आप लोगों को काम पर रखते हैं, किस तरह से आप लोगों को चुनते हैं। I was wanting to know tips because you always learn. Come on, amen somebody? और देखिए क्योंकि Yes. आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। And he said, Pastor Michael, और उन्होंने कहा पासवान माइकल जी, I never employ people, only those who are qualified. और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को देखिए चुनता नहीं हूं जो कि एकदम अच्छे से पढ़े लिखे योग्य हैं, I'm looking for team players. और मैं ऐसे लोगों की तलाश में होता हूं जो टीम प्लेयर हों। How many of you following me right ये तो now? समझ रहे हैं? He says, I'm looking for a person who can function with the parameters, within the parameters of a team. और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहता हूं जो टीम के दायरे में होकर काम कर सकता है। It's not your qualification alone, और सिर्फ ये आपकी पढ़ाई लिखाई ही नहीं, but it is your ability लेकिन ये आपकी काबिलियत to होती है function together as a team. एक टीम के साथ मिलकर काम करने का। And let me tell you, और मुझे बताने दीजिए, not only in the body of सिर्फ Christ, मसीह की देह में ही नहीं, but people outside are looking for such people. बाहर के लोग भी ऐसे इंसान की तलाश में May मिलेंगे। that anointing come upon you right और now. उनको वो अभिषेक आप पर आ जाए इस समय, In the name of यीशु Jesus. के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? You see, it's so important. आप देखते बहुत महत्वपूर्ण, You may be a great man, शायद हो सकता है आप बड़े व्यक्ति हैं, but if you cannot function with your team, लेकिन- you are useless. लेकिन अगर आप अपने टीम के साथ मिलकर आप काम नहीं कर सकते तो आप बेकार हैं। Church, कलीसिया, today I want you to receive this grace. आज चाहते हैं कि आप इस अनुग्रह को ले लीजिए। Many times because of pride, we cannot function together as a team. Because of insecurity, अगर ये मेरे साथ आगे पीछे जाएगा, आगे जाएगा तो मुझे कौन देखेगा? Insecurity. और देखिए बहुत बार क्या होता है, घमंड के वजह से देखिए हम टीम में होकर काम नहीं कर पाते। बहुत बार हमारे अंदर असुरक्षा होने की वजह से हम टीम के साथ मिलकर काम नहीं कर पाते अरे हैं। इसको ही लोग देखेंगे तो मेरे को कौन देखेगा? Insecurity. असुरक्षा। Today, आज don't worry. फिक्र मत करो। You see, आप देखते हैं, if you give your shoulder for somebody to climb, my friend, your shoulder is strong. आप Hallelujah. किसी को अपना कंधा देते हैं चढ़ने के लिए तो मेरे दोस्त आपका कंधा मजबूत है। People are looking at you. लोग आपकी ओर देख रहे हैं, People are looking. लोग देख रहे हैं। There are many people, bold, beautiful, handsome, लेकिन एक दूसरे से उनको बात करने को भी नहीं आती. They cannot function as a team. कितने लोग agree करते हैं? कितने लोग सहमत हैं इसमें? Yes. Today you must pray as I'm speaking right now. Lord, send that oil of understanding in my home upon every family member of mine. और जैसे आज हम बोल रहे हैं तो आपको प्रार्थना Yes. करने की, प्रभु तेरी समझदारी का वो तेल मेरे घर पर, मेरे परिवार के हर एक सदस्य पर भेज दे। If you are having a business, अगर आपका कोई व्यवसाय है, a small एक business, छोटा सा ही व्यवसाय, a big business, कोई बड़ा व्यवसाय, you must begin to pray, oh Lord, send the oil of understanding upon all my workers in Jesus' आपको name. ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु तेरी समझदारी का तेल मेरे सारे श्रमिकों पर भेज दे यीशु के नाम में। Hallelujah. Suddenly your business will start growing. और अचानक आप पाएंगे आपका व्यवसाय फूलने फलने लगेगा। कभी कभी हमारे पास बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी पहचान होती है, लेकिन वर्कर्स किधर भी कुछ भी रख देते हैं, बोले मुझे क्या मालूम, उधर रखा था मैंने, उस किसी ने नहीं उठाया। लेकिन जब टीम काम करती है तो मेरा तेरा नहीं होता है, हम का हमारा होता है। मेरा तेरा तेरा नहीं, नहीं सर, ये हमारा है। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? Oil of understanding समझदारी का तेल is coming upon you. आपके ऊपर आ रहा है In the name of यीशु Jesus. के नाम में। That's why I want you to open your Bibles, everybody. और इसलिए चाहते हैं सभी लोग बाइबल खोलें, Open your Bibles. अपना बाइबल खोलें। Verse 3, look what it says. तीसरा वचन देखिए, वचन क्या कहता है? The anointing of understanding, the anointing of unity is described over here. It is like the dew of Hermon. Dew. See? First it speaks about oil, now it speaks about the dew descending upon the Mount of Zion. For there the Lord commanded the blessing. Everyone say blessing. Blessing कहां पर आती है? जहां पर समझदारी होती है. बाजू वाले से कहो, आशीष वहीं आता है अपने बड़ों से बोले आशीष वहीं आता है जहां पर समझदारी होती है. जहां पर समझदारी होती है। हाँ, कुत्ते बिल्ली जैसे झगड़ो, वहां पर आशीष नहीं आती है, वहां पर छड़ी आती है. I'm telling you, कह रहे हैं आपसे, many people are not blessed. बहुत सारे लोग आशीषित नहीं है। Mother-in-law going to church, सासू माँ कलीसिया में जाती है, shakara bara bara bara. शाकारा वारा वारा वारा, You cannot talk to your daughter-in-law. लेकिन अपनी बहू से बात नहीं कर पाती। बहू से नहीं बात कर सकती, प्रभु से बात करती है. बहू प्रार्थना में जाती है, बहू प्रार्थना में जाती है, रोती है, घर में आके सबको रुलाती है.
जो लोग हंस नहीं रहे मैं क्या समझू फिर? Are you listening, church? Yes, see, we claim to know God. We claim to love God. देखिए हम दावा करते हैं परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते But हैं, God never puts the blessing there. लेकिन परमेश्वर कभी अपनी आशीष वहां नहीं रखता. Praise the Lord. बोलिए प्रभु की स्तुति हो. But if God can find somebody who is a man or a woman of understanding, God says, I want to bless there. Hallelujah. परमेश्वर को स्त्री पुरुष मिल जाए जो समझदारी वाले लोग हैं तो परमेश्वर का मैं अपनी आशीष वहां रखना चाहूंगा. Raise your right hand and say, Father, in the name of Jesus, अपने दाएं हाथ को उठाकर कहे पिता यीशु के I नाम ask you for the oil of understanding. मैं आपसे समझदारी का तेल मांगता हूं. Begin to pray, begin to pray, begin to चलिए, pray. प्रार्थना शुरू करें, शुरू Pray, करें. somebody pray loudly right कोई now. तो जोर से प्रार्थना करे. Somebody pray loudly right कोई तो now. जोर से प्रार्थना करे. Those are watching, begin to pray. जो देख रहे हैं, प्रार्थना करे. That oil of understanding is coming upon you. समझदारी का तेल आपके ऊपर आ रहा Mark है. my words. देख लीजिए. From today onwards, आज के दिन से your house, your relationships आपका घर आपका संबंध will never be the same. पहले जैसा कभी नहीं Open रहेगा. your mouth and pray with tears right चलिए अपना now. मुंह खोले इस समय आंसुओं के साथ प्रार्थना करेंगे. In the name of Jesus. यीशु के नाम. Every confusion in your family go. आपके परिवार में से हर एक उलझन चली जाए. Every confusion in your relationships go. आपके संबंध में से हर एक गड़बड़ी और उलझन चली जाए. लेडी सिर्फ हाथ मत उठाओ, मुंह भी खोलकर प्रार्थना चलिए कीजिए. सभी लोग अपने हाथ ही नहीं उठाना, मुंह खोल के भी प्रार्थना करें. In the name of यीशु Jesus. के नाम में. Somebody say amen. कोई तो कहे आमेन. Lift your hand and speak in tongues. हाथ उठाओ, अन्य भाषा में प्रार्थना करें. Reke shobro dakale brasatele bahata. Can somebody pray in tongues? कोई तो मेहरबानी करके अन्य भाषा में प्रार्थना करें. Louder, hallelujah. जोर से. In your homes, begin to pray in tongues. अपने घर में अन्य भाषा में प्रार्थना करें. In everyone, जो लोग पीछे बैठे हैं, be in the middle, begin to pray in tongues. चलिए जो लोग पीछे बैठे बीच में बैठे अन्य भाषा में प्रार्थना करें. Holy Spirit, move. पवित्र आत्मा मंडरा. Let your anointing move. तेरा अभिषेक मंडराने दे. Anything that is disturbing your grace, remove it, oh God. कोई भी चीज जो तेरे अनुग्रह को परेशान करती है या भंग करती है उखाड़ दे प्रभु. Today, businesses must grow. आज से व्यवसाय बढ़ना ही चाहिए. Today's things must grow. आज से चीजें बढ़नी चाहिए. In the mighty name of Jesus, यीशु के सामर्थ्य there नाम. will be promotions. तरक्कियां आएंगी There will be और increments. बढ़ोतरी जरूर आएगी. Raise your hand and receive. चलिए अपने हाथ उठाओ. ग्रहण The करें. work that has stopped will start in Jesus' जो name. काम रुक गया था आज से शुरू होगा. यीशु के Open नाम your में. mouth and give him the praise. Somebody shout चलिए hallelujah. अपना मुंह खोलें, Say प्रभु thank you, स्तुति करें, Jesus. हालेलुया बोले धन्यवाद यीशु. Open your mouth. अपना मुंह खोलें. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Not only what is the blessing over there. और Look, यहाँ पर आशीष क्या है? it says life forevermore. और वो है सदा काल का जीवन. Everyone say life. सभी लोग कहें जीवन. Life includes healing. और जीवन में देखिए चंगाई शामिल है. Look at somebody and say life includes healing. किसी को देखकर कहें जीवन में चंगाई शामिल है. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. If you are not a man of unity, if you are not a man of understanding, healing cannot touch you. देखिए अगर आप समझदारी वाले या एकता वाले व्यक्ति नहीं है तो चंगाई आपको छू नहीं सकेगा. कितने लोग सुन रहे हैं? Many years ago, कई साल पहले look at me. देखिए Many years ago, कई साल पहले you know, our meeting was very small. हमारी सभा बहुत छोटी होती थी तब. And, you know, in those days we had that phones, you know, where you dial one number, it goes round the world. और देखिए उस जमाने में देखिए ऐसा फोन होता था आपके पास जब आप को नंबर डायल करना होता था पूरा ऐसा घुमाना पड़ता था. Zero घुमाना पड़ता तो ऐसा zik. और फिर वो वापस आएगा. How many of you had that phones? कितने लोगों के पास ऐसा फोन कभी हुआ Praise था? God. अभी उसका बहुत पैसा मिलेगा, okay? Listen to this. सुनिए इसे. So we had that phone. तो हमारे पास वो फोन था And suddenly one call came on that phone. और अचानक उस फोन में एक कॉल आया. They used to call me Brother Michael. Brother Michael. और पहले वो पासवान माइकल की जगह पे भाई माइकल कहते थे. भाई माइकल This man is shouting at me. ये आदमी मुझ पे चिल्ला रहा है And he's saying, Marun takin, fodun takin. और कह रहा है मार दूंगा फोड़ दूंगा. I said, okay. मैंने कहा ठीक है Don't worry, I'm praying. ठीक है. No, मत करो, मैं प्रार्थना you know, those days it was small. So I said, no, brother, you just come now. तो वो कह रहे हैं नहीं भाई आप बस अभी आ जाओ. So I said, okay, I'm coming. तो इन्होंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ. So after half an hour, I went over there. और आधा घंटे के बाद वहां गए And I saw it was like two neighbors. और इन्होंने देखा वहां पे दो पड़ोसी लोगों के बीच में. And when I went over there, जब ये वहां पहुंचे that other opposite man, he said, hello, Brother Michael, praise the और Lord. दूसरे व्यक्ति ने कहा हेलो भाई माइकल प्रभु की स्तुति हो. Now this lady is also saying, hello, Brother Michael, ale to me, praise the और Lord. दूसरी वो औरत भी कहने लगे अरे प्रेज द लॉर्ड भाई माइकल आप आ गए. I said, काय झालं? इन्होंने पूछा क्या हुआ. नाही ब्रदर हे बघा ना अंकल बघा ना बोलतोय मारून टाकीन फोडून टाकीन माझा हात थोडा असा आहे आता मी आता ब्रदर मायकलच्या मीटिंग मध्ये जाणार बरा होणार तर तुला मी बघणार. ये अंकल देखिए इनका हाथ ऐसा ये अंकल कह रहे हैं मैं तुम्हें मार दूंगा फोड़ दूंगा अभी मेरे हाथ ऐसे टेढ़े. They were our people. फिर मैं Look at somebody and say आमची लोक. अब किसी को देखकर कहे हमारे लोग हैं. ए जोरात म्हणा रे बाबा. What is telling that lady?
देखिए वो आदमी उस औरत को क्या कह रहा है, आज मी प्रेयर मध्ये गेलो होतो, आज मैं प्रार्थना में गया था, थोडा हात बरा झालाय, थोड़ा हाथ मेरा ठीक हुआ है, सगळं बरा होईन ना जब सब ठीक हो जाएगा ना तर तुझी वाट लावणार मी बघ. फिर देखा तेरी वाट लगा दूंगा मैं. इन माय माइंड आई थॉट अपने मन में दिमाग में सोचा इन्होंने, गॉड विल नेवर मेक योर हैंड प्रॉपर. परमेश्वर इसका हाथ कभी ठीक नहीं करेगा. प्रेज द लॉर्ड. बोलिए प्रभु की स्तुति हो. खांसी आ रही है. Are you listening? Life forevermore. सदा काल का जीवन. They had a function. और देखिए उनका एक समारोह था, So they put that lights, it's called Toran. So he's telling, तो वो कह रहा है I'll pull everything down. सब कुछ मैं गिरा दूंगा, Don't put it in front of my house. मेरे घर के आगे मत लगाना. I told him, uncle, उन्होंने कहा अंकल तुम्हाला बरं व्हायचं आहे? आपको ठीक होना है. He said, व्हायचं आहे ना मला. तो वो कह रहे हाँ होना है ना मुझे. मग forgive करा तिला. तब आप इनको क्षमा कर दो. Hello, are you there? आप समझ रहे हैं. He said, brother, मी तुमचं तेल दिलेलं ना, मी ते पण पुसतो. एक हप्ता द्या मला, मी बरा होणार बघा हिचं काय करतो मी. If you are not a man of understanding, अगर आप समझदारी वाले व्यक्ति नहीं है, the blessing will never come upon you. तब आशीष आपके ऊपर कभी नहीं आ सकेगी. Today, आज do you want that blessing to come? क्या आप चाहते हैं कि वो आशीष आप लोगों के ऊपर आए? I'm telling you, listen. सुनिए, You don't have to struggle. आपको संघर्ष करने की जरूरत Many people, they want blessings, but they're not people of understanding, not people of unity. That's why blessing always runs from them. और देखिए उन्हें आशीष चाहिए, लेकिन देखिए वो एकता वाले या समझदारी वाले व्यक्ति नहीं होते Look हैं, at this. इसलिए आशीष उनके ऊपर आती है, आशीष उनसे दूर भागती है. Today, lift your hands and say, Father, in the name of आज अपने Jesus, हाथों पर उठाकर कहे, पिता यीशु के नाम में forgive my arrogance, मेरी आक्रामकता को क्षमा कर, forgive my pride, oh मेरे God. घमंड को क्षमा कर प्रभु. Wash me in the blood of मुझे यीशु Jesus. के नाम में धो ले. I ask you for the anointing of wisdom and understanding. मैं आपसे बुद्धि और समझदारी का अभिषेक मांगता हूँ. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. चलिए प्रार्थना करना शुरू करें. Young man, young woman, begin to pray. नौजवान युवक युवती सभी लोग प्रार्थना करें. God's grace is coming upon you. परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आ रहा है. And today onwards, और आज के दिन से life will begin to flow in your life. आपकी जिंदगी में जीवन बहने लग जाएगा. God's life will flow. परमेश्वर का जीवन बहेगा. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Today, the first point we looked at the principle of unity. Look at somebody and say the principle of unity. आज पहले सिद्धांत को आप देखते हैं, किसी को देखकर कहें एकता का सिद्धांत. Is this blessing you, church? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है कलीसिया? Please write it down what I'm saying. खाली आंख बंद करके मत बैठो ऐसा. ऐसा आंख बंद करेगा क्या सीखेगा? कुछ लिखो. Imagine, suppose you went to some place and they were telling us, "Here lottery number लागना रहा है." You would keep your eyes closed like that? मान लीजिए आप किसी जगह पे जाते हैं और वहां वो लोग आपसे कहेंगे ये लॉटरी का नंबर आने वाला है, तो क्या आप अपनी आंखें ऐसे बंद There करेंगे? you will write ना. हाँ, सांगा. You will do, no? आप बोलेंगे ना हाँ बोलो मैं लिखता हूँ, बोलो. Write it down now. लिख लीजिए. God's promises are more than a lottery ticket. Hallelujah. परमेश्वर का वायदा जो है लॉटरी टिकट से भी बढ़कर है. Open your Bibles. अपना बाइबल खोलो, Praise the Lord. Write it down. लिख लीजिए. The second point. दूसरा मुद्दा Unity in the kingdom of God. वो है परमेश्वर के राज्य में एकता. Unity in God's house. परमेश्वर घर में एकता. Go to Ephesians chapter 4, please. चलिए निकालें इफिसी की पत्री 4 So अध्याय. first we looked at the principle of unity. Now we look at the unity in the kingdom of God. और देखिए पहले Or in हमने the house of God. एकता के सिद्धांत को हमने देखा. अब हम देखेंगे परमेश्वर के घर में जो एकता उसका सिद्धांत. Ephesians chapter 4, इफिसी की पत्री 4 अध्याय verses 3 to 6. तीसरे वचन से छठे वचन. Look what it says. देखिए वचन क्या कहता है. Paul says to the Christians, फिर पौलुस वहां पर देखिए मसीह लोगों से कहता है, endeavor, you do all that you can to keep the unity of the Spirit. Everyone say unity of the Spirit. See what Paul is saying. Endeavoring, do all that you can to keep the unity of the Spirit. और जो कुछ भी तुम कर सकते हैं करो आत्मा की एकता बनाए रखने के लिए. आत्मा की एकता. सच बोलो, आत्मा की एकता. बोलिए आत्मा की एकता. In the bond of peace. और देखिए मेल के बंधन में. What is a sign of unity? और ये एकता का निशानी या चिन्ह क्या है? Is peace. वह है शांति. Shalom. शालोम. Hallelujah. Maybe sometimes we don't agree with everything that is said. और देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ कहा गया सब बातों में हम सहमत नहीं होते. We are not Hanji Maharaj. Hanji. जो हम बोला Hanji. हम देखिए Hanji. No. हाँ जी बोलने वाले लोग नहीं हुए. जरूर नहीं तुम हाजी बोलो सब चीज को. तुम नाजी भी बोल सकते हो. लेकिन आत्मा की एकता बनाए रखने के लिए हम साथ में चलते हैं.
सब जो बोलो आत्मा की एकता, बोलिए आत्मा की एकता, वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत महत्वपूर्ण. Unity in the spirit of आत्मा the में spirit. एकता. Let's go to verse 4. चलिए जाते 14 वचन में. So you don't have to agree. There is one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling. Verse 5. और चौथा वचन, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है. One Lord, one faith, one baptism. एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है. Verse 6, please. छठा वचन. One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है. You see, the unity of Christians आप देखते हैं मसीहियों की एकता should reflect the unity of God. परमेश्वर की एकता को दिखाना चाहिए. How many of you are understanding right now? चलिए कितने समझ रहे See, हैं? today, देखिए आज sometimes, कभी कभी we have our differences. कुछ हमारे बीच में अलगाव या फर्क आते हैं. थोड़ा बहुत तू मैं होता है. Come on, yes or no? हर एक घर में होता है. But we should not take our तू मैं outside and display it to all the people. How many of you listening right लेकिन now? हमें अपने तू मैं को लेकर बाहर जाकर पूरी दुनिया के सामने उसका तमाशा नहीं बनाना है. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे. You see the Muslim brothers and sisters. आप पाएंगे मुस्लिम भाई बहनों को. You will never find their stuff on the social media. और कभी भी आप उनकी चीजों को सोशल मीडिया पे नहीं पाएंगे. Come on, agree with me what I'm saying? सहमत हैं आप इस वक्त? Yes. जी हाँ. It is always some Christian people, they will have something join they'll be doing. और हमेशा देखिए कुछ मसीह लोग देखिए कुछ ना कुछ ऐसा बितुका करते And हैं. then we say, oh, I believe in Jesus. और फिर हम कहें, ओ मैं यीशु में विश्वास करता हूँ. That is why इसलिए people don't come to the Lord. लोग जो हैं प्रभु के पास आते नहीं. How many of you are listening right now? कि तो सुन रहे हैं इस वक्त. Unity in the spirit. आत्मा में एकता. Look at somebody and say unity in the spirit. किसी को देखकर कहें आत्मा में एकता. There was one prayer group. एक प्रार्थना समूह हुआ. Look at me. देखिए यहाँ There was one prayer group. एक प्रार्थना समूह They हुआ. came to meet me recently. I think it was a few months back. कुछ महीनों पहले. I'll tell you. कहते हैं आपसे. In the prayer group, how it started, I will tell you. और देखो प्रार्थना ग्रुप कैसे शुरू हुआ ना सब कुछ. No, कैसे लफड़ा शुरू हुआ. कैसे. One team of people, और देखिए लोगों का एक जो टीम था. they say, let us have intercession on Wednesday. उन्होंने कहा चलो हम बुधवार को प्रार्थना मध्यस्थी शुरू करेंगे. I hope it is not like that here. आशा करते हैं कि ऐसी सब बात यहाँ नहीं चलती होगी ना. जीसस, नहीं तो तुम लोग बोलेगा ये पास्टर माइकल हम लोग को ताना मारा. मेरे को इतना टाइम नहीं रहे तुम लोग को ताना मारने के लिए. आई एम अ मैन ऑफ गॉड. अगर तुमको क्या लगता है, डर लगता है, सब मुंह पे बोलेगा, फोन कर उठाएगा, सीधा बोल देगा तेरे को. मैं ताना वाना के बिजी. आई डोंट यूज द पुलपिट टू ताना माना. फटा हटा. आई एम टेलिंग द ट्रूथ. सच्चाई बता रहे आपको. दिस इज व्हाट द लीडर्स केम. और ऐसे ही अगुवे लोग आए. One team is saying, let's have it on Thursday. और दूसरा टीम कह रहा है कि चलो हम गुरुवार को करेंगे. Simple thing. Come on, hello, praise the Lord. और एक आसान सरल सी बात है ना यहाँ पे. You know what? आप जानते क्या? The group is divided. और वो जो ग्रुप था वही बट गया. Everything stopped. सब कुछ रुक गया. Why? क्यों? Did they eat somebody's money? Did they do sin? Did they do anything? But just because of one simple thing, the group was divided. क्या उन्होंने किसी का पैसा खाया? किसी का पैसा खाया नहीं, कुछ नहीं किया, पाप नहीं किया, कुछ को नहीं किया, खाली इंटरसेशन के दिन के वजह से पूरा ग्रुप बर्बाद हो गया. कितने लोग जानते हैं कि ऐसा होता है? Hello, are you with me right now? क्या आप लोग साथ में हैं इस Yes. वक्त? Do you know how a fight starts in a family? आप जानते हैं परिवार में लड़ाई झगड़े कैसे शुरू होते हैं? I'll tell you. बताएंगे. Suddenly the whole family, hey, चलो बाहर जाएंगे. और अचानक सभी परिवार के लोग चलो बाहर जाएंगे. Come on now. सुनिए. बाजू वाले को बोल मीटिंग के बाद बाहर जाएंगे. अपने पड़ोसी को बोलिए मीटिंग के बाद हम लोग बाहर जाएंगे. बोलना प्रोफेसी मारना यार. हालेलुया. बाजू वाले को पैसा तू देगा. Listen. सुनिए. Look at me. पड़ोसी को. Look at me. Now the family is saying, चलो बाहर जाएंगे. अब परिवार कह रहा है चलो हम बाहर जाएंगे. Two people said, दो लोग कहते हैं let's go to this hotel. चलो इस होटल में जाएंगे. Three people say, तीन लोग कह रहे हैं let's go to that hotel. उस होटल में जाएंगे. चलो. After some time, कुछ समय के बाद everybody is eating dinner at home. और सब लोग रात का खाना घर में ही खा रहे हैं. How many agree with me what ये I'm तो saying? सहमत है जो कह रहे And for 3 days they are not talking to each other. हैं. अगले 3 दिन तक एक दूसरे से बात भी नहीं करते. See, somebody is already saying amen. और देखिए किसी ने पहले ही आमेन कह दिया. They are good people. वे अच्छे लोग हैं. Praying people. Shakara bara 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 bara. प्रार्थना करने वाले लोग शकारा बराबर. Stupid. The Bible says, बाइबल कहती है maintain the unity of the spirit. बाइबल कहती है कि आत्मा की एकता को बनाए रखो. अरे अगर वो होटल में नहीं जाएगा तो तेरे को क्या, उन लोग क्या उड़ के सब परी लोग आने वाले क्या तेरे को देने के लिए? ठीक है बाबा तू जा, चल ठीक है, किधर जाने का, चल मैं आता है, उधर भी खाना मिलेगा.
कम ऑन नाउ, हेलो। नहीं, मैं बोलता वही होटल में चलेगा। Such people, ऐसे लोग they are never blessed. कभी आशीषित नहीं होते। How many of you listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? It happens. It happens. ऐसा होता है, होता है। May holidays. May holidays. मई की छुट्टियां, Let's go to Goa. चलो हम गोवा जाएंगे। Somebody said, let's go to Mahabaleshwar. और दूसरा कोई कहता है चलो हम महाबलेश्वर No, जाएंगे। तो नहीं गया ना बाबा महाबलेश्वर। कोई गया क्या बाबा? अरे तू क्या? Jesus, change. नहीं तो तू बोलेगा हम तेरा ही बोल रहा है। झगड़ा। दो लोग महाबलेश्वर जाता है, तीन लोग कुर्ला जाता है। किधर नहीं जाता? Tell your neighbor, neighbor, चलिए अपने पड़ोस के लिए पड़ोसी, the Holy Spirit is speaking to us. पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है। And families are divided. और परिवार बट जाते हैं, Ministries are divided. सेवकाइयां बढ़ जाती हैं, Not because of something big, और कुछ बड़े कारण की वजह से नहीं, because of stupid things. कुछ बेतुका सा चीज हो गया, Relationships are broken. संबंध टूट जाते हैं। Today I pray, आज प्रार्थना करते हैं, may God give you that anointing of understanding. परमेश्वर आपको समझदारी का अभिषेक Lift दे। your hands and say, Father, in the name of अपने Jesus, हाथों को उठाकर बोले, पिता यीशु I के नाम ask you for the anointing of understanding. मैं आपसे समझदारी का अभिषेक मांगता हूँ। Holy Spirit, come with your power. पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ के साथ आ अगर जाओ। आप सचमुच पूरे 5-10 सेकंड के लिए अपनी आंखों को मत खोलना, raise your hand and begin to pray. चलिए अपने हाथ उठाएं, प्रार्थना करना शुरू करें। Raise your hand and begin to pray. अपने हाथ उठा के प्रार्थना करना शुरू करें। Raise your hand and begin to pray. अपने हाथ उठा प्रार्थना करना शुरू करें। The Lord is blessing you right प्रभु now. आपको आशीष दे रहा है। Holy Spirit, remove that confusion. पवित्र आत्मा उस गड़बड़ी को निकाल दे, Remove that evil confusion. उस शैतानी गड़बड़ी को निकाल दे। Begin to pray, Lord, remove the fights from my family. और प्रार्थना करना शुरू करें, मेरे परिवार में से लड़ाई झगड़े मिटा दे। Remove that confusion from my मेरे relationships. संबंध में से हर एक उलझन और गड़बड़ी को निकाल In दे। the name of Jesus. यीशु के नाम में। Uproot that inferiority complex. Uproot that rejection from my life. और उस आत्महीनता की भावना, उस ठुकराहट को मेरी जिंदगी से उखाड़ दे। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Say, Lord, I thank you for my family. कहे, प्रभु धन्यवाद मेरे परिवार के लिए। How many of you are thanking God for your family? आप ऐसे कितने लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने परिवार के लिए? Tell your neighbor, neighbor, अपने पड़ोसी को बोले, पड़ोसी मेरा परिवार परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रभु ने मुझे दिया है। किसका फैमिली यहाँ पे परफेक्ट है तो बोलिए, अगले बार से हम लोग आपको स्टेज के ऊपर बिठा देंगे। How many of you know? कितने लोग जानते हैं You don't get to choose your family. God sends you in there. आपको अपने परिवार को चुनने का मौका नहीं मिला है, परमेश्वर ने खुद आपको वहां भेजा है। There is a thing. इसके पीछे कारण है। You don't say, I don't want that Salian family. I want, Roderick's family. ऐसा चांस मिला क्या तेरे को? नहीं मिला. Come on, yes or no? Yes. God gave you that family. परमेश्वर ने खुद आपको परिवार दिया है। Today you have to ask God, आज आपको परमेश्वर से मांगना है, Lord, I need that understanding. प्रभु मुझे वो समझदारी चाहिए। And today I tell you, और आज मैं कहता there हूँ, will be many testimonies today. बहुत सारी गवाहियां आएंगी, Many testimonies today. बहुत सारी गवाहियां आएंगी। In the mighty name of यीशु के Jesus. समर्थी नाम में। जो काम तुम्हारा इतने सालों से नहीं बना, आज वो काम तुम्हारा बनने वाला है. I prophesy in the name of Jesus. If you are ready, say अगर आप hallelujah. लोग तैयार है, कहे हालेलुया। Are you listening right आप now? लोग सुन रहे हैं इस वक्त? So you see, church, तो आप देखते हैं unity in the kingdom. राज्य में एकता How it comes. कैसे आता है? Now the third point. तीसरा मुद्दा खत्म Pastor, करें। you said about all these things very good. Unity, principle of unity. Unity in the kingdom. I spoke about the church ministry. I spoke about the house. How can the unity come? Can you teach me 3 practical ways? Look at somebody and say 3 practical ways. किसी को देखकर कहे इस समय 3 व्यवहारिक तरीका। Praise the Lord. ध्यान से सुने इस वक्त, मैं जो बोल रहा हूं ये सब चीज प्रैक्टिकल चीजें बोल रहा हूं, ये बड़ी बड़ी कथा नहीं बोल रहा हूं आपको. One young couple came to me. एक नौजवान जोड़ा इनके पास आया। I knew that they were married for around about 7 or 8 months. इन्हें पता है कि उनकी शादी हुई बस 7-8 महीने हुए थे। And they came to me and said, Pastor, वे इनके पास आकर कहने लगे, पासवान जी we are in trouble. हम मुसीबत में हैं। I thought somebody committed adultery or slept with somebody or something. Come on, hello. Hi. इन्होंने सोचा कि No, this is common nowadays. ये तो So no, we didn't do anything like तो उन्होंने that. कहा नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, But there is a problem. लेकिन एक समस्या है, We want to divorce. हमें तलाक चाहिए। Saiba. I said, why do you want to divorce? इन्होंने पूछा आपको तलाक क्यों चाहिए? Now look at this. अब देखिए, The wife says, पत्नी कहती the है, lady says, महिला कहती है, this man ये आदमी does not love my family. मेरे परिवार से प्यार नहीं करता। In front of me, मेरे सामने for 10 minutes, they were doing fighting.
10 मिनट तक देखिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हो I was looking. और ये देख रहे थे तू ऐसा है, तूने मेरे माँ को ऐसा बोला, तेरे बाप को ऐसा बोला, तेरा बाप चोर है, ये है वो है, सब चालू है, ड्रामा चालू है. मैं मस्त अपना कॉफी पी रहा हूँ, बोले झगड़ो झगड़ो तुम लोग, है ना. Usually I don't take counseling and all because it's a waste of time. अक्सर ऐसे काउंसलिंग लेते नहीं क्योंकि ये समय की बर्बादी है But because it was some pastor's family, so I said okay. नहीं क्योंकि कुछ चल रहा है, धमाधम चल रहा है. ये बात थी इसलिए उन्होंने कहा, I'll sue you. I'll see you in court. I said both of you all shut up, otherwise get out. इन्होंने कहा तुम दोनों चुप हो जाओ नहीं तो निकलो यहाँ से. See, बच्चे लोग समझ रहे हैं, आप लोग नहीं समझ रहे हैं. I said, what happened? इन्होंने पूछा क्या हुआ. The girl said, लड़की ने कहा he never comes to my house. ये कभी मेरे घर में नहीं आते तेरी तो ये झगड़ा. That's why I don't want him. इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए. This boy says, और ये लड़का कहता है she earns more than me. That's why I don't go to her house. ये मुझसे ज्यादा कमाती है इसलिए मैं इसके घर में नहीं जाता. I said, because of this small thing, और इन्होंने कहा इस मामूली से बात की वजह से you are divorcing each other. एक दूसरे को तुम तलाक देना चाहते What God brought together, हो जो परमेश्वर ने एक साथ लाया है you are throwing it away तुम लोग ऐसी फेंक रहे for बाहर little things. छोटी चीजों में. Church of God. परमेश्वर की कलीसिया Could it be that your unity is spoiled not because of something big, but because of some little things? संभव है ना कि आपकी एकता टूट गई नाश हो गई कुछ बड़ी चीज की वजह से नहीं लेकिन कुछ महज मामूली And चीजों से. today, if that anointing of wisdom and understanding, that oil comes on you, who knows, your family will be a blessing to और thousands. आज वो बुद्धि का वो समझदारी का तेल वो अभिषेक आपकी जिंदगी पर आने जा रहा है और कौन जाता है परिवार फिर से एक हो जाएगा. Today, I want to share with you आज आपसे बांटना चाहते हैं the 3 points 3 ऐसे मुद्दे which I gave them. जो इन्होंने उनको दिया. Don't just write it on paper, सिर्फ कागज पर ही नहीं लिखना write them on your heart. अपने दिल पर लिख लीजिए. I want them to you to write it down. और चाहते हैं कि आप इन्हें दिल पे लिखें. Please write it down. मेहरबानी करके लिखें. It will save you a lot of trouble. ये आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचाएगा. Lift your hands and say, Holy Spirit, अपने हाथ ऊपर उठाएं और कहे पवित्र move upon everyone. हर एक पर मंडरा. Say, Holy Spirit, raise both your hands. Flow upon everyone. एक पर बहने लग. Remove every power of confusion from their homes and families. घर परिवार में से हर एक गड़बड़ी की शक्ति को निकाल Begin दे. to pray. कोई तो अपनी आवाज़ों को उठाइए. कोई तो अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाइए. Begin to pray right now. प्रार्थना करना शुरू करें. Say, in the name of कहे Jesus, यीशु के नाम में every spirit of division, हर एक बंटवारे की आत्मा, every spirit of confusion, हर एक गड़बड़ी की आत्मा leave from the homes, निकल घरों में से, leave from the families, निकल परिवारों में से, leave from the Karuna Southern Ministry. निकल करुणा से. Hey, raise your voices, raise your voices. मेरी आवाज ऊंचा उठाएं, आवाज ऊंचा उठाएं. Hallelujah. Hallelujah. Open your mouth, open your mouth. मुख खोलिए, अपना मुख खोलिए. Fire fall. अग्नि उतरे. Say, anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक Touch every marriage. शादी को छू ले. Touch every relationship. संबंधों को छू ले. अपनी आवाज़ों को उठा, अपनी आवाज़ों को उठाइए. अपनी आवाज बुलंद In करें the इस name समय. of Jesus. यीशु के नाम में. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. वो गड़बड़ की आत्मा निकल रही है. गड़बड़ी की आत्मा निकल रही है. Oh, glory, glory, glory. महिमा, महिमा, महिमा. Hallelujah. Hallelujah. That which is broken. जो टूटा हुआ था, That which is broken. टूटा हुआ है. The Lord is healing it. प्रभु से चका कर रहा The है. Lord is healing it. प्रभु से चका कर रहा है. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Yes, young man, raise your voice. ये नौजवान युवक अपनी आवाज ऊंचा Young उठाएं. sister, raise your voice. नौजवान बहन आवाज ऊंचा उठाएं. Hallelujah. हालेलुया. Say thank you, Father. धन्यवाद पिता. There's some of you are crying. कुछ लोग रो रहे हैं. Man, अपनी आवाज को बहन उठाइए. अपनी आवाज बुलंद ऊंचा In the उठाइए. name of Jesus. यीशु के नाम Say में. every evil power हर एक शैतानी शक्ति that came against my family जो मेरे परिवार के खिलाफ पे आई, to destroy my मेरे family. परिवार को नाश करने के लिए. Go! हाँ. Go in the name of Jesus. यीशु के नाम में. Hallelujah. हालेलुया. Let your anointing of unity flow. तेरी एकता का अभिषेक बहे. Let your peace flow तेरी शांति बहे. in my home, मेरे घर में. in my relationship. मेरे संबंधों में. In Jesus' name. यीशु के नाम Now में. raise both your hands and begin to pray loudly right now. दोनों हाथ उठाएं और ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे इस समय. Redeko sabrada kalebro shata. Yes, begin to pray right now. हाँ चलिए प्रार्थना करें इस वक्त. Yes, even the little children begin to pray. छोटे बच्चों भी प्रार्थना करेंगे. Those are watching. जो देख रहे हैं. Today, आज तुम्हारे घर में वो एकता की सामर्थ उतर रही आज है. आपके घर में वो एकता की समझ उतर रही In है. your business, आपके व्यवसाय में, in your job, नौकरी में, in your आपके workplace. कार्यस्थल में. Receive it ले लीजिए. in Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम And में. God's people said, और कुछ लोगों ने कहा, Amen. 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 Give the Lord a shout and a clap प्रभु offering ताली right की now. है इस समय. Hallelujah. हालेलुया. Today that anointing is coming. आज वो अभिषेक आ रहा है. That anointing has already come. अभिषेक आ गया है.
Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। How many of you are weeping? आप ऐसे कितने रो रहे हैं? Stand up, such people. ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे। घबराओ नहीं, मैं भी आपके लिए रो कर आया हूँ प्रभु के सामने. Very good. Thank you, brother. How many of you are weeping? As you are praying, you are crying. और जैसे भी आप प्रार्थना करें तो आप रोने भी लगे। Stand up, such people. ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे। Stand up. खड़े हो जाएंगे। Don't feel shy. शर्माए नहीं। The anointing of understanding and peace is come upon your homes. शांति और समझदारी का अभिषेक आपके घर पर आ गया है। In the name of Jesus. यीशु के नाम From में। today onwards, आज के दिन से तुम्हारे फैमिली में एक अलग कार्य होने वाला है. आपके परिवार में एक अलग काम होने वाला है। Don't make your heart proud. आपके दिल को घमंड से भरो मत। Don't say, don't do like that. As you're sitting down now, जैसे आप नीचे I want the बैठे हैं। young people, beta, listen carefully. I want you to pray because your prayer can save your family today. क्योंकि आपकी प्रार्थना आपके परिवार को बचा सकती है आज। बाजू वाले को कहो, बांधने के लिए बहुत टाइम लगता है, गिराने के लिए घंटे में गिरा सकते हैं. Do you agree with me? क्या आप सहमत हैं? जो घर आपने इतना साल लगे आपको बांधने के लिए, महीने लगे, एक बुलडोजर आ गया गिरा देगा, आधे घंटे में सब खत्म, कहानी रह जाएगी. एक था घर. Today आज I prophesy over your life. आपकी जिंदगी में भविष्यवाणी करते हैं। God will build your house. परमेश्वर आपका घर बांधेगा। God will build your family. परमेश्वर आपका परिवार बांधेगा। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। I want you to give the Lord a beautiful clap offering right now. प्रभु जोरदार खूबसूरत से ताली भेज चढ़ाएं। The anointing is falling. The anointing is falling. अभिषेक उतर रहा है। The anointing is falling. अभिषेक उतर रहा है। Please be seated, sirs. मेहरबानी करके बैठ जाएं इस वक्त। So we looked at the principle of unity. तो हमने यहाँ पर एकता के सिद्धांत को देखे। We looked at the principle of unity first. पहले हमने जो एकता के सिद्धांत को देख लिया। Then we looked at the unity in the kingdom of God. फिर उसके बाद परमेश्वर के राज्य की एकता को हमने देखा। And then we looked at the unity in the family. फिर उसके बाद हमने देखे परिवार में एकता को देखा। Now we are going to look at three things, अब हम देखने जा रहे हैं तीन चीजें, practical things व्यवहारिक चीजें that we can have or we can do to achieve unity. जो हमारे पास हो सकता है या हम कर सकते हैं एकता को पाने के लिए। How many of you are ready right now? कितने तैयार हैं इस वक्त? Please write this down. मेहरबानी करके लिख लीजिए And every day start praying for this. और हर एक दिन इसके लिए प्रार्थना करना शुरू Will करें। you do that? क्या आप करेंगे? Do this for 7 days 7 दिन तक करना and you see the result. और आप देखेंगे नतीजों को। And if it works, continue it always. और अगर ये काम करता है तो इसे हमेशा के लिए जारी रखें। Will you do that? क्या आप करेंगे? And share it with others. और दूसरों के साथ इसे बांटिएगा। The first one, पहला है write it down please. Go to James chapter 1 verse 19. और निकाले याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 19वां वचन। James chapter 1 verse 19. याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय। So then, my beloved brethren, let every man and every woman be swift to hear. और देखिए यहाँ पे लिखा है, पर है मेरे प्रिय भाइयों बहनों यह बात तुम जानो हर एक मनुष्य जो सुनने के लिए तत्पर रहे, Slow to speak and slow to wrath. और बोलने में धीमा और क्रोध में भी धीमा हो। The first one पहला है is communication. वो है वार्तालाप। Look at somebody and say communication. किसी को देखकर कहें वार्तालाप। The first thing to bring unity or to have understanding is communication. और देखिए एकता को लाने के लिए या समझदारी होने के लिए आपसी तालमेल बहुत जरूरी है। Everyone say communication. Now what is communication? Simple. Today raise your hand and say, Father, in the name of Jesus, अपने हाथ उठाकर बोले पिता यीशु के नाम में open my ears मेरे कानों को खोल to hear what is being said. जो कहा गया उसे सुनने के लिए। आजकल सब लोग चाहते हैं कि कोई उनकी सुने, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। कितने लोग यकीन करती हैं? बोले मेरी सुन, सामने वाला बोलता है तू चुप हट, मेरी सुन। सब एक दूसरे को चुप कराते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आखिर सुनता कौन है? जज सुनता है बस और सुनवाई देता है, और बेचारे परिवार अलग हो जाते हैं। काश if one man would have listened to his wife, what are you saying? अगर काश एक आदमी जो अपनी पत्नी को सुना होता कि क्या वो कह रही है। If the woman would have said, what are you really saying? I want to listen to you, talk. अगर पत्नी ने ऐसा कहा होता कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं सुनना चाहती हूँ, चलिए बोलिए। आदमी कितने घंटे बात करेगा? 1 घंटा। बोल जो बोलने का, बोलते रहे तू, मैं सुनता हूं। ऑटोमेटिकली वो आदमी शांत हो जाएगा।
I'm telling you, church, कह रहे हैं आपसे कलीसिया, today, आज may God give us listening ears. परमेश्वर हमें सुनने के कान दे। Can I tell you Yep. the way of growth in the kingdom of God? परमेश्वर के राज्य में बढ़ने का तरीका It's not by talking, ये बोलने से नहीं होता, it's by listening. सुनने से होता है। Lift your hands and say, Lord, give me listening ears. अपने हाथ उठाकर कहे कि प्रभु मुझे सुनने वाले कान In दे। your business, आपके व्यवसाय you में want your business to grow. आप चाहते हैं आपका व्यवसाय बढ़े, Listen to your customer feedback. आपके ग्राहकों का फीडबैक सुनिए, Listen to your customer feedback. आपके ग्राहकों का फीडबैक सुनिएगा। You may be having a vada pav stall. Listen. बोले कैसा है? अच्छा है ना? तू बंद कर तेरा मुंह, उनको बात करने दे. Look at somebody and say, listen. किसी को देखकर कहें सुनो, Everyone say listen. सभी लोग कहेंगे सुनो, And then take the action. फिर उसके बाद आप कार्य करने के लिए Leaders, listen. सुनो। क्या जरूरत है लोग तुम पका 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 बात मत करो, सुनो क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है. In the same way, you may be the head of the house. और शायद हो सकता है आप घर के मुखिया हैं, Sometimes the wife says ये नहीं वो नहीं है, ठीक है, listen. कभी कभी पत्नी कहती ये नहीं वो नहीं, ठीक है चलो सुनो। And I'm telling you, और कह रहे हैं आपसे, the second part of communication is to speak properly, और बातचीत not का like a दूसरा serpent. A serpent moves like that. और सही तरह से बोलना है, सांप के जैसा नहीं। सांप जो है Your yes should be yes, आपका your हाँ- no should be no. Somebody आपकी- say yes. आपकी हाँ हाँ होनी चाहिए, ना ना होनी चाहिए। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Can I have a praise the Lord? Lift your hands and say, Father, in the name of अपने Jesus, हाथों पर ढक के कहें, पिता यीशु के नाम, open my ears to listen. मेरे कानों को खोल सुनने के लिए, In the name of यीशु के Jesus, नाम। help me to understand what is being said. मेरी मदद कर समझने के लिए जो कहा गया है। Now touch your mouth and say, in the name of अब अपने मुंह Jesus, को छूकर कहें, यीशु के नाम में touch my words, O मेरे God. शब्दों को छू ले प्रभु। Let my mouth be a life-giving spirit. और मेरा मुंह जो है जीवन देने वाली आत्मा बन जाए, जीवन देने वाला सोत्र बन जाए. Life-giving well, actually. और जीवन देने वाला कुआं सोता। When you speak, जब आप बोलते हैं it will bring healing. ये चंगाई को लाएगा। Look at somebody and say, communication. किसी को देखकर कहें वार्तालाप। Come on, everybody say communication. The second one, दूसरा है forgiveness. क्षमा करना। Come on, everybody say चलिए सभी लोग forgiveness. कहेंगे क्षमा करना। Ephesians chapter 4 verse 32. इफिसी की पत्री 4 अध्याय उसका 32वां Be वचन। kind to one another, वहां पर forgiving one another, even as God in Christ forgave you. एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय क्षमा करने वाले बनो, जैसे परमेश्वर ने भी तुम्हें क्षमा किया। People of God, परमेश्वर के लोगों, listen to me. हमारी सुने। Everybody wants to receive grace. हर कोई जो है अनुग्रह पाना चाहता है, Very few people want to release लेकिन grace. बहुत ही कम लोग हैं जो अनुग्रह मुक्त करना चाहते हैं। छोटी छोटी बातों पे हम लोग कितना बड़ा तांडव मचाते हैं. छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर. Forgive. क्षमा करें। How many of you following me right now? Today in your family, आज आपके परिवार में छोटी छोटी बातें होती हैं और वो बड़ी पहाड़ बन जाती हैं. Today God has forgiven you. देखिए परमेश्वर आपको क्षमा किया है, You release it. आप उसे मुक्त करें। You release it. आप मुक्त करें। नहीं तूने कैसा बोला सामने वाला, अरे बोला रहेगा, छोड़ अभी आगे बढ़. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Are you listening, आप church? सुन रहे हैं कलीसिया? Forgiveness is very important in a team. और टीम में क्षमा करना बहुत महत्वपूर्ण होता It's है। very important. Oh, Pastor, how much should I forgive? Ask God how much He has forgiven. Then you talk. बाद में कितना मुझे क्षमा करना चाहिए, परमेश्वर से पूछे कितना उसने आपको क्षमा किया Many है, people फिर ask me, बात करें। how much to forgive? एक बार, दो बार. तो अमिताभ बच्चन है कह रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6. You ask God how much He has forgiven you. आप परमेश्वर से पूछे कितना उसने आपको क्षमा किया है। अंदर क्या क्या खिचड़ी पकती है हम लोगों को खुदा को मालूम है. सिर्फ कितना पाप अंदर होता है खुदा को ही मालूम है. और खुदा बोलता है तेरे को धो दिया मैंने, तेरे को धो दिया मैंने, तेरे को धो दिया मैंने. लेकिन किया तो नहीं, लेकिन खिचड़ी तो पक गया है ना बेटा. God has forgiven us. परमेश्वर ने हमको क्षमा किया है। बाजू वाले को बोल हमारी लायकी नहीं है. अपने पड़ोसी को बोले हमारी तो लायकी ही नहीं है इसमें। अरे बोलना, क्या स्टाइल मार रहा है. क्या हमारी लायकी है खड़े रहने की? है क्या किसी की लायकी यहाँ पर? लेकिन खुदा प्रभु हमारा बहुत दयालु है रे. Praise the Lord. Hallelujah. He's a forgiving God. वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। He's a healing God. से बेटा चल, गिर गया ना, कोई ने उठा, चल उठ, चल मैं तेरे साथ है. Then if God is functioning with you like that, अगर परमेश्वर आपके साथ इस तरह से काम कर रहा है, why can't you show that grace to your own? तो क्यों नहीं आप वो अनुग्रह अपने सगे लोगों को दिखाएं। Lift your hands and say, Father, in the name of अपने हाथ Jesus, ऊपर उठा के कहे पिता यीशु के नाम give में me a forgiving heart.
मुझे क्षमा करने वाला दिल दे। I release all my grudges to you. मेरी सारी कड़वाहट को मैं तुझ पर मुक्त करता हूं। Heal my wounds, O मेरे God. घावों को चंगा कर दे। Begin to lift your hands. Inner healing is taking चलिए place. अपने हाथों को उठाएं, अंदरूनी चकाइयां हो रही हैं। Inner healing is taking अंदरूनी place. चकाइयां हो रही हैं। Say, all my कहे wounds, मेरे सारे घाव, all my pain. सारे दर्द, बोलिए मेरे सारे घाव, बोलिए बोलिए मेरे सारे घाव, मेरे सारे दर्द सारे दर्द मैं तेरे पास लेकर आता हूँ। मैं तेरे पास लेकर आता हूं। यीशु, तेरी चंगाई बहने दे मेरे जीवन में। Let your healing power flow. तेरी चकाई का सामान बहने अपने दे। हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए इस वक्त. Open your mouth and begin to pray. चलिए अपना मुंह खोले, प्रार्थना करना शुरू करें। Let your healing power flow. तेरी चकाई का सामान बहने दे। बोलिए तेरी चंगाई का सामर्थ मेरे जीवन में, मेरे शरीर में बहने दे। मुंह खोलो मेरी बहन, मुंह खोलो मेरे भाई. सभी लोग मुंह खोलिए। प्रभु तुम्हें चंगाई दे रहा, मुझे मत देखिए. प्रभु आपको चकाई जो दे रहा है। तुम्हारे जीवन में हाथ से घड़े, उन्हें आज उन लोगों को क्षमा कीजिए इस वक्त. God is forgiving you. God is releasing His power. परमेश्वर को क्षमा कर रहा है। परमेश्वर की समझ, Bones are being healed right now. हड्डियां चंगी हो रही हैं। Yes, the blood is being healed. यहाँ खून चंगा हो रहा है। खून चंगा हो रहा है इस वक्त. Sicknesses for many years are being healed right कई now. साल की बीमारियां चंगी हो रही हैं इस समय। Hallelujah. वो गरीबी की दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं. गरीबी की दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। In the name of यीशु Jesus. के नाम में। ओ जो हाथों से तुम्हारा गलत काम हुआ है, प्रभु बोलिए मुझे क्षमा कर. In the name of Jesus. यीशु के नाम में। God is setting you free. परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। I prophesy God is setting you free. भविष्यवाणी करते परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। Today you are ready for your miracle. आज आप तैयार हो गए अपने आशीर्वाद के Today लिए। you are ready for your miracle. आज तैयार हो गए आप अपने आशीर्वाद के लिए। In the name of यीशु Jesus. के नाम में। Somebody say amen. कोई तो कहे आमेन। Amen. आमेन। The first one, क्या कोई बता सकता पहला है मुझे? है? पहला मुद्दा क्या है? जोर से बोलिए, इंग्लिश में बोलिए. कम्युनिकेशन. फिर से बोलिए. कम्युनिकेशन में कितने मुद्दे हैं? सुनना और बोलना. सेकंड पॉइंट, फॉरगिवनेस. जोर से बोलिए. क्षमा करना. जोर से बोलिए, फॉरगिवनेस. कितना क्षमा करना है? अमिताभ बच्चन जैसे 1 2 3 4 5 7 कितना? हाँ ईरानी भाई बोलिए. नो सर. खुदा की तरफ देखिए कितना क्षमा किया हमको. बस उसका खाता, हमारा खाता चल रहा है उसके साथ, तो ये खाता भी शुरू कर दो. Last one. Now today what I want to share with you. How can listen leaders, सुनिए सभी लोग, listen very carefully. The last one, आखिरी Matthew 18:20. Where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं. Listen to me. सुनिए, Many years ago, कई साल पहले I heard this saying, a family that prays together. What? I thought ये सब बकवास है. इन्होंने सोचा कि ये सब बकवास है. Because now I was a Christian, you know. क्योंकि So मैंने सोचा ये सब बकवास है, कुछ भी बोलते हैं. But when I read the scripture, लेकिन जब इस वचन को इन्होंने पढ़े, I understood समझ गए that when you pray, कि जब आप प्रार्थना करते हैं, the anointing comes down. अभिषेक नीचे आ जाता है. There's a prophet in Africa. अफ्रीका देश में एक भविष्यवक्ता है. Listen to this. सुनिए इसे. I'll be going to that place very soon. बहुत जल्द उस जगह पे जाने वाले हैं. Listen to this. सुनिए इसे. In his church, उनकी कलीसिया at में one time, एक समय पर 30,000 people gather. 30,000 लोग इकट्ठा होते It's like हैं a huge stadium. और एक बड़ा सा विशाल स्टेडियम. How many people? कितने लोग? How many? कितने लोग? Only सिर्फ one service. एक सभा में 30,000, 30,000 लोग इकट्ठा होते हैं. 30,000 लोग. ऐसे नहीं कि पहली बार आए हैं हीलिंग के लिए. लीडर्स लोग खड़े होते हैं. देखो चंगाई के लिए प्रार्थना करो तो पब्लिक आएगी, और थोड़ा खाना भी बांटो ना तो और पब्लिक आएगी. इसलिए लोग खाना वाना नहीं बांटते हैं. सुनिए, इसलिए किसी को बोलो चंगाई प्रोफेसी पूरा भर जाएगा. मीरा रोड से भी पब्लिक ज्यादा आएगा. लेकिन उनको बोलो बाइबल पढ़ो, बाइबल नहीं चाहिए. That's why I teach the word of God. इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाते हैं. In his church, उनकी कलीसिया में he will make all his leaders, अपने सभी अगुओं को they have to compulsory come 1 hour of prayer. कितना घंटा? 1 घंटा पर्सनल प्रेयर घर पे. And if the leader does not come, और अगर अगुआ आता नहीं है, टाटा बाय बाय. बाजू वाले को मत बोलो टाटा बाय बाय. No, really, I can tell you the name of the prophet. You can go and check on the internet, but I'll not tell you. I'll tell my leaders. 1 hour of prayer.
And they are praying in tongues. और वो लोग आके अन्य भाषा में प्रार्थना करते They are हैं, praying in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करते They हैं are praying, Lord, send your fire. और प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी आग भेज। And then the people, outside people, they enter the church. फिर उसके बाद बाहर के लोग कलीसिया के अंदर आते हैं। There's one friend of mine in Lagos. एक मित्र जो लेगोस में रहते हैं, Not exactly my friend. I know him. I speak to him often. He's a music producer. अक्सर उससे बातचीत करते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। He has given music for 1 or 2 albums of songs of mine. और पद्मन जी के एक दो गाने को उन्होंने एल्बम को उन्होंने दिए म्यूजिक। Listen to this. सुनिए। He says, when people come inside, और वो बताते हैं कि जब लोग अंदर आते हैं, people experience the power of God. लोग परमेश्वर की समझ का अनुभव करते हैं। Listen, सुनिए, the thing is this. और मामला ये है, When you start praying जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं as a church, एक कलीसिया के रूप में, come on now. चलिए अब When the leaders come together and pray, जब अगुवे लोग साथ में इकट्ठा होकर प्रार्थना that करते हैं, anointing comes upon you. तो वो अभिषेक आपके ऊपर आता है। And जो भी दुष्ट आत्माएं जो भी तुमको तुम्हारे बीच में गड़बड़ लाने की कोशिश करती हैं, वो चली जाती हैं. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो, जोर से बोलिए praise the जोर Lord. से बोले प्रभु की स्तुति हो। Why the apostles had so much of unity? और क्यों प्रेरितों के बीच में इतनी एकता थी? Because for 10 days क्योंकि 10 दिनों तक they were praying वो लोग प्रार्थना कर रहे and थे that fire came. और वो आग आई। Hallelujah. Today, husband and wife are not praying together. आज पति पत्नी मिलकर साथ में प्रार्थना नहीं करते, सब लोग मोबाइल पे. They are praying for the world. पत्नी किसी के साथ जुड़ी हुई है, पति किसी के साथ और किसी के साथ जुड़ा हुआ है, दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. अरे दुनिया के लिए मत प्रार्थना कर, तेरे परिवार के साथ में प्रार्थना कर. बाजी वाले को बोलो, खुद के घर में आग लगी हुई है, दुनिया की आग तू बुझा रहा है ना बेवकूफ? यही हम लोग कर रहे हैं. मुझे ऑफरिंग लिया क्या? थोड़ा कम आएगा शायद आज, थोड़ा थप्पड़ मार रहा हूं ना इसीलिए. टुडे फैमिली प्रेयर, रेज योर हैंड एंड से होली स्पिरिट. अपने हाथ उठाकर कहे पवित्र आत्मा। बोलिए, ए बहन बोलना बोलना, मुंह खोलना मेरी बहन. पैसे मांग रहा हूं क्या? बोल कर क्या तू स्टाइल मार रही है यार? हा? इनको तो बोल के फायदा नहीं है, ये लोग खोल ही नहीं रहे मुंह, ये अच्छे लोग हैं. लिफ्ट योर हैंड, बोलिए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे घर में आज से प्रार्थना होने दे. Begin to pray, begin to pray, begin to pray, begin to pray. प्रार्थना करना शुरू करें। हर एक ऐसी गड़बड़ी की शक्ति मेरे घर से उखड़ जाए. ऐसी गड़बड़ी की शक्ति मेरे घर से उखड़ Begin to जाए। pray, begin to pray, begin to pray. प्रार्थना करना शुरू करें। Say every power हर एक शक्ति that is disturbing my relationship, जो मेरे संबंध को बिगाड़ती है, fire. Open your mouth and say fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग। Begin to pray, begin to pray, begin to pray. प्रार्थना शुरू करें। Yes, yes, hallelujah. Begin to pray. Shakarabo dekereba sata redeko sabadaka. Somebody leader begin to pray for the fire to fall. अगले लोग प्रार्थना करें, इस समय आग उतरे। Begin to pray for the fire to fall. करने के लिए प्रार्थना करें। Somebody say fire. अग्नि। Begin, all the leaders begin to pray for the fire to fall. अगले लोग प्रार्थना करें आग उतरने के लिए। Fire in your family. आपके परिवार में आग। Open your mouth and say, बोलिए हर एक गड़बड़ी की आत्मा मेरे परिवार से इस जगह से लेकर जा. हर एक गड़बड़ी की आत्मा मेरे परिवार से इस जगह से लेकर जा। Brothers and sisters come together. भाई बहन साथ में इकट्ठे। Husband and wife and children come together. पत्नी और बच्चे एक साथ हो जाए। Yes, children and parents come together. हाँ, माता पिता और बच्चे Hey, इकट्ठा होए। something is happening. कुछ तो हो रहा है। Something is happening. कुछ तो हो रहा है। Unity in your business. आपके व्यवसाय में एकता। Unity in your workplace. कार्यस्थल में एकता। May God give unity in your workers. परमेश्वर आपके कर्मचारियों के बीच में Hey, unity between brother and sister. भाई बहनों के बीच में एकता। Hallelujah.